Again, happy Valentine's Day. And in this video, we will see the different types of love. We have already seen the self love, and today, again, we will see different types of love apart from self love. So, the first category of those loves amongst them, the first category is something called as eros, जिसे infatuation भी कहते हैं. Actually, this love is necessarily only for the body and only for the sex. The person gets the thought of the other individual only as regards having sex in the bed. And this is there is a spark, there is an ignition, there is a passion, there is a fervor, but it doesn't remain for a long time. When the individual comes to know that XYZ partner won't be available, or XYZ individual won't be available for sex, that eros, from the word erotic, or that infatuation feeling, that goes away, or that intensity and even the presence of that love after the individual has a sex with that particular person, जिसके ऊपर वो इरोस या इन्फेचुएशन है, वो चला जाता है तुरंत. आफ्टर द सेक्सुअल डिजायर्स एंड वो जो हवस है, वो जो वासना है, once it gets fulfilled. Yeah. So this is the first kind of love which is called as eros. अँड ये सिर्फ म्हणजे हे देहाचं प्रेम असतं. बदन का प्यार रहता है, बदन पे सितारे जो लपेटे रहते उसका प्यार रहता है. एंड इसमें सिर्फ टच, किस, फिजिकल इंटीमेसी रहती है. या अब ये जो दूसरा जो लव है उसे कहते हैं लुडुस, LUDUS. सो मे बी फ्रॉम द वर्ड लूडो, आई डोंट नो, बट लुडुस का मतलब है दैट लव विच इज जस्ट एज अ गेम और एज अ फन. देर इज ओनली अ फन एलिमेंट. ओके. एंड मे बी fantasization would be there, maybe flirting is there, some kinky talk is there, some sexual chatting is there, नोकझोंक रह सकती है, नटखट, जो नटखट रहते हैं लोग, वो रह सकता है, नटखटपन. एंड everything is at a thought level, conceptual level, maybe even at a feeling level and emotional level, but that love doesn't get converted either into sex or any kind of action. Only talk is there. Nowadays, what we are seeing in the clinic as well as in the society is that many women are trying to seduce men, yeah, with exhibitionism, with the revealing clothes, by showing their curves and curls and grooves and larger part of their back and the arms and the belly button and the part of the belly and so on and so forth. They would be also having a very kinky and a naughty talk, either on the Facebook Messenger or on the WhatsApp, but they would never land up into any kind of bodily interaction or maybe even social interaction. So they are just looking at this particular thing like a play, like a fun element, जिसे कहते हैं ludus. Okay. Then the third type of love is sturge, where only warm affection is there and passion is there, but there is no fervor or folly or tumultuousness. Okay. उसमें कोई गर्मी नहीं रहती, बस उतना ही रहता है. Then people say that they have something called as a platonic love or platonic relationship from the scientist and philosopher Plato, where everything is there but just the sex. Okay, so sex is not there but everything is there. I wonder how this kind of love would be existing. Another example of love is mania. ओके. एंड दिस पीपल, ये जो थोड़ा क्या बोलते हैं, गर्मी रहती है लेकिन सटक भी रहते हैं ये लोग. ओके. एंड देर इज नार्सिसिज्म, देर इज अ मैडनेस, देर इज एजिटेशन. अंधे हो जाते हैं और येड़े हो जाते हैं इस प्यार में लोग. अंधे तो होते ही है लेकिन येड़े हो जाते हैं.
is the best example of this was in the movie, I think, Dar, where शाहरुख says किरण. तो वो किरदार जो है मैनियक ऑब्सेसिव. एंड वन मोर मूवी ऑफ शाहरुख खान एंड माधुरी दीक्षित वाज देयर, आई डोंट रिमेंबर द नेम. इस दोनों मूवीज में शाहरुख खान ने ये मैनियक लवर का बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है. हैट्स ऑफ टू हिम. And there is an feeling of ownership and possession, and the maniac person in his so-called or her so-called love wants continuous affection, admiration and attention from the individual whom he or she is loving. And अगर मेरे को वो नहीं मिला तो वो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए. और इसमें से वो जो था कुछ वर्षों पहले रिंकू पाटील का जो प्रकरण था, ॲसिड फेकणं दुसऱ्यावरती, दुसऱ्याचा संहार करणं. अगर मेरे को नहीं मिला खिलौने जैसा, ये खिलौना मेरे को नहीं मिला तो किसको भी नहीं दूंगा और मिलेगा भी नहीं. सो एंड दे हैव काइंड ऑफ व्हाट आई वुड से मूडी रहता है. कभी ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी एकदम इलेशन में जाते हैं, वगैरह वगैरह. रोलर कोस्टर राइड. ओके. Then comes something called as a yo-yo relationship, where one can have both the feelings of like, dislike or love and separation at the same time. वो जो yo-yo का टॉय रहता है, so the moment the two individuals come near each other, this one person amongst them, they start hitting or repelling, and the moment they go down, go away from each other, they start missing each other and again they want to be together. तो ये alternate चालू रहता है. So yo-yo love, you can say. Then one more love is called as a pragma love, or very pragmatic. These people are very practical, so-called very practical and very pragmatic, and very, what I would say, they are actually materialistic and very calculative. और उनकी checklist रहती है कि मेरे प्यार में ये है. So called very practical, as I said, or they do not see for compatibility but more for matching. Okay, I think in arranged marriages ना ये matching ही रहता है, उसमें love नहीं रहता है, लेकिन ये matching ही रहता है. वैसे ये pragmatic people के जो pragma, उस love को pragma love कहते हैं. हमारे मेडिकल कॉलेज में ये होता था कि ये pragmatic love, कि भाई मैं सर्जन हो रहा हूँ और तू एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हो रही है, तो चलो दोनों मिलके अस्पताल निकाल सकते हैं. तो चलो दोनों प्यार में, एक दूसरे के प्यार में, मोहब्बत में गिर जाएंगे और अस्पताल बनाने के लिए मैरिज बनाएंगे. क्योंकि रादर देन कॉलिंग अ डिफरेंट सर्जन और अ डिफरेंट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, इफ माय हस्बैंड और वाइफ इज एन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, ग्रेट. सो उनका इंटेंशन और उनका गोल कुछ अलग ही रहता है. वेरी प्रैक्टिकल. बढ़िया. Then of course that doesn't mean that in doctor couples who are amongst whom one is an operating physician or a surgeon and another is an anesthesiologist or maybe any kind of other doctor, उनमें genuine प्यार नहीं होता, ऐसा नहीं है. ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, because I being in the medical science, I know that and I have seen that from a very close distance. Then there is something called as agape. Agape type of love, AGAPE, is where the person is actually continuously submissive and actually it is one-sided. कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ. ये बहुत लोग एम्पैथेटिक रहते हैं, कंपैशनेट रहते हैं, बहुत ही ज़रा पैथोलॉजिकली काइंड रहते हैं, मैं बोलूँगा. क्योंकि दूसरे ने कुछ भी किया, उसका सामने वाले ने मेरा इंसल्ट किया, ह्यूमिलिएशन किया, बर्बाद किया मेरे को, तो भी मैं उसके ऊपर प्यार करता रहूँगा. ओके, रहता है. Furthermore, there is something called as a sympathetic and a compassionate love, where a person falls in love of another individual when sympathy is required, so rather than empathy. तो say for example, अरे एक लड़की रहती है, वो लड़के को कहती है कि मेरे पेरेंट्स मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, मेरा कंपैरिजन दूसरे सिबलिंग से करते हैं और मेरे को बहुत नफरत देते हैं. माय पेरेंट्स डोंट गिव मी सिक्योरिटी, एनकरेजमेंट, अप्रिसिएशन एंड लव. तो सामने वाले जो सुनता है, जो होने वाला बॉयफ्रेंड है आगे जाके, उसके मन में सिंपैथी जागृत हो उठती है और
वो सिंपैथी देता है और वो सिंपैथी के वजह से ये दोनों प्यार में गिर जाते हैं. So sympathetic or so-called compassionate love. Compassionate is a better version of that. Then there is something called as a bhakti love, where where you reverend somebody. तो वो गॉड भी हो सकता है, गॉडली फिगर हो सकती है, डिवाइन फिगर हो सकती है, या जिसके ऊपर असीम श्रद्धा और भक्ति है. फिर then there is a love, or I would say there is a liking, where you have adoration and admiration for the people. Then there is something called as a crazy love, where you really become a crazy for that person. Mad हो जाते हो, पागल हो जाते हो, कुछ भी करते हो. उसको तकलीफ नहीं देते, जैसे मैनियक लव में मैंने कहा, लेकिन वो क्रेजी लव रहता है. And finally, there are two types of love. One or three, I would say, और तीन love के बारे में, प्यार के, मोहब्बत के बारे में बोलता हूँ. Then there is one love which is called as an altruistic love. So that is love for the cosmos, love for the nation, love for the society, love for the globe, love for the earth. And उसका ही थोड़ा एक सब टाइप इज पैट्रियोटिक लव, विच इज़ लव फॉर द मदरलैंड, फादरलैंड और द कंट्री. तो यस, ऐसा भी रहता है. उसके लिए भी भक्ति रहती है, उसके लिए भी ये चीज़ें हमें शक्ति भी देती है, एंड उसके लिए हम लाइफ भी सेक्रीफाइस करते हैं. या सोल्जर्स डू दैट. सो सलाम, वैलेंटाइंस डे को सोल्जर्स को भी सलाम, और सब लोग जो समाज सेवा करते हैं उनको भी सलाम, क्योंकि ये अल्ट्रुइस्टिक लव से ही बाहर आता है. और हिम्मत लगती है इसे, क्योंकि इसमें खुद को तो आनंद और अच्छा लगता ही है, लेकिन परमार्थ हो जाता है उसमें. या देन द लव विच इज कॉल्ड एज companionate love, which is substantial and which is quite good, quite powerful, and that happens because of the sahvats and satsanga, या togetherness with a person for pretty number of weeks, months or years. And after the individuals in that companionate love, the couple, the individual, they come to know each other in toto, in detail, because they are together. And हमारे कैरेक्टर और पर्सनालिटी का पूरी तरह से सामने वाले को अंदाज़ा आ जाता है. हमारे जो लेयर्स रहते हैं अंदर, ओके, हर एक स्ट्रेंथ वीकनेस का सामने वाले को अंदाज़ा आ जाता है. कंपेनियनशिप, कैमरेडरी, फ्रेंडशिप के वजह से ये धीरे धीरे इवॉल्व हो जाता है, लेकिन ये सॉलिड रहता है. एंड फाइनली आई वुड से दैट काइंड ऑफ लव, जिसे हम मितवा लव कहते हैं. मितवा, जो मित्र रहता है, जो दोस्त रहता है, जो कंपेनियन रहता है, जो कोहैबिटेंट रहता है, जो तत्वज्ञ रहता है, और जिससे हम सीख सकते हैं, जिसके वजह से हमें हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस हो जाती है, एडाप्टेशन पावर मिलती है, जो हमें नर्चर करता है. ओके, दूसरे, ऑफ कोर्स दिस इज दिस काइंड ऑफ मितवा लव, मितवा तत्वज्ञ वाटाड्या, दिस इज फ्रॉम बोथ साइड्स. तो वो जो तत्वज्ञ है इज़ अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, गुरु भी रहता है सामने वाला हमारा. और वाटाड्या, दैट मीन्स पूरे ज़िंदगी जो हमारी जर्नी है, मुसाफिर हूँ मैं यारो, ना घर है ना ठिकाना. तो ये जो हम मुसाफिर रहते हैं, तो वो जो दूसरा आदमी जो इस मितवा लव में रहता है, वो भी वाटाड्या, वो भी मुसाफिर है. तो हमारे पूरे ज़िंदगी के जर्नी में वो हमारा मुसाफिर बन के रहता है. एंड सुख हो या दुख हो, वो हमेशा हमारे साथ रहता है. एंड यूजुअली आई वुड से दैट काइंड ऑफ लव, फाइनली आइडियल लव जो हमें चाहिए, वुड बी दैट लव विच इज़ जेन्युइन, विच इज़ सिंसियर, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ऑनेस्ट, विच इज़ ऑथेंटिक, विच इज़ जेन्युइन, विच इज़ ट्रांसपेरेंट, जहाँ में कंपेनियनशिप है, कंपैशन भी है और मितवा भी है. एंड जहाँ पे हम एक 10-12 प्रकार की इंटीमसीज है वो शेयर करते हैं. फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, जोग्राफिक हो, स्पिरिचुअल हो, आत्मिक हो, आध्यात्मिक हो, इंटेलेक्चुअल हो, एजुकेटिव हो, इमोशनल हो, क्रिएटिव हो, एक्सपीरियंशियल हो, साथ साथ रहने की, साथ साथ बांटने की, शेयरिंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो,
नरिशमेंट हो, एडमायरेशन हो, एनकरेजमेंट हो दूसरे के लिए सैक्रिफाइस हो, ये सब पूरी अगर ये रेसिपी आ गई तो वो आइडियल लव रहता है. फॉर अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, वेरी फ्यू पीपल गेट दिस. एंड आई विश, आई एम सेइंग अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ये एक्चुअली अगर ये लव नहीं है तो हमारी ये खोज चालू रहती है ना, इसलिए अनफॉर्चुनेटली. तो इस प्रकार का ये जो आइडियल लव हमें मिला, जो अगर हमारे ज़िंदगी में आ गया तो ज़िंदगी बन जाती है यार, एक ही ज़िंदगी है. तो ऑन दिस वैलेंटाइंस डे आई विश ऑल ऑफ यू दिस काइंड ऑफ आइडियल लव, full of all its intimacies and all its positive and healthy dimensions, which ultimately would help you to grow as an individual, in and in becoming of yourself. Okay, जो कुछ भी है in self actualization and completion and fulfillment of you as a person in this life. Okay, so wishing you that kind of love. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. ओके, जय कॉस्मोस. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. और वो आपको प्यार भरा किस. ओके, सबके लिए फ्लाइंग किस. ओके, चलो बाय, सी यू, टेक केयर. अच्छा, शुक्रिया, अलविदा, वगैरह वगैरह वगैरह.